Hello, bankers. A very good evening to all of you. Welcome back. From today onward, we are going to start with our module B, which is all about risk management. Okay. Again, a very important module. You'll see, like जैसे मैंने आपको past में भी बोला है कि module A and module B. If you prepare these two module very well, so you are 60% done with this particular subject. Okay. तो जिसमें मॉड्यूल ए हमने ऑलरेडी आपका पूरा कंप्लीट कर लिया है। पूरे आपके 10 के 10 यूनिट जिनके वीडियोस मैंने आपको फुल लेंथ वीडियोस आपका प्रोवाइड किए हैं, ऑलमोस्ट इट इज फॉर 10 to 12 आवर्स। ओके, तो आप उनको देखिए। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप डाउट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद मॉड्यूल बी। So as I said, module B is all about risk management and very interesting one also, especially for those who have risk management as an elective subject. So this module will build your fundamentals and foundations for your risk management subject also, because we have same content, but that content is very elaborated in your like in your risk management paper, right? So we have these particular units, so risk and basic risk management framework, which we are going to cover today in this particular session. Unit 12, risk in banking business, risk regulation in banking industry, market risk, credit risk, operational risk, liquidity risk, and Basel 3 framework on liquidity standards. Okay, so very important one, और काफ़ी अच्छे ढंग से हम इनको समझेंगे अगले 7 to 8 क्लासेस के अंदर। हर एक यूनिट के ऊपर आपका एक सेशन लेके चलेंगे। ठीक, ये जो पहले 3 यूनिट आपके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 11 12 13, they will build your base toward the remaining one. Okay, so जितने भी रेस्ट आपके सब्जेक्ट है, फर्स्ट वन इज it is all about the risk introduction. Second one, that is specific to banking a business, where we'll discuss the major business line as per the classification given by BCBS. So there are 8 business lines, and they are risk wise they are categorized among 3 books, which are banking book, your ट्रेडिंग बुक एंड ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। सो उसको हम लोग कल आपका डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों का जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन आपका, ठीक है। सो रिस्क एंड बेसिक रिस्क फ्रेमवर्क, risk management framework. So introduction to risk, linkage among risk, capital and return, they generally known as trinity of risk management. Then trio जिनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। Why a risk need to be managed, and the most important part, basic risk management framework, where we'll talk about the organizational structure as well as the entire risk management process, which include like risk identification. Then we have risk measurement, which is also known as quantifying the risk. Then risk pricing, monitoring and control, and finally mitigation. Okay, so let's just start with the basics. So risk की अगर हम लोग बात करें, what is risk? Everybody knows about this. ठीक है, so risk are like, these are some uncertainties. Due to these particular uncertainties, basically when they become in reality, so bank they are going to make some losses. So ये आपका अनसर्टेनिटी कैसे हो सकती है? आपका ये क्रेडिट से रिलेटेड हो सकती है, ऑब्लिगर बोरोवर रिस्क जिसको हम लोग बोलते हैं, या मार्केट से रिलेटेड हो सकते हैं ऑन आर ट्रेडिंग पोर्टफोलियोज। ठीक है, जो हमारे पोर्टफोलियोज उसके अगेंस्ट मार्केट बिहेव कर रहा है। इट कैन बी लिक्विडिटी रिस्क, कि जहां पे हम लोग जो हमारे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस आपके हैं उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे। इट कैन बी रिलेटेड टू ऑपरेशंस ऑल्सो। ठीक है, जैसे आपका लाइक कोई सिस्टम फेलियर्स है, इंटरनेट डाउन है, या फिर एम्प्लॉय स्ट्राइक है। सो दीज ऑल कम्स अंडर द ऑपरेशनल रिस्क, राइट? So it is defined as the possibility of loss that may arise due to various uncertainties. In banking situation, the uncertainties in a banking operation may affect the profit of a bank adversely. ठीक है, so मतलब like everybody knows about what is risk and others, so ज़्यादा इस पे कोई ज़्यादा टेंशन वाला बात नहीं है, ना ही ज़्यादा हम उस पर टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, so now risk, capital and return, so this is also known as रिस्क रिटर्न ट्रिनिटी, ट्रायो के नाम से भी हम लोग इनको जानते हैं। ठीक है, सो देखो क्या होता है, लेट्स से वी आर मेकिंग सम इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, कहीं पर अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, सो वी हैव सम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स। सो एक पे ऑफ आपका जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, सो पे ऑफ आर समथिंग लाइक दिस। सपोज दैट दिस इज योर रिस्क साइड
and this is return, right? So everyone knows about this. Lower the risk, lower the return, and higher the risk, higher the return, and higher will be the capital, right? So capital is means, देखो रिस्क, आपका रिस्क एंड रिटर्न पे ऑफ आपका कुछ इस तरीके से काम करेगा, ठीक है? अब इसमें अगर हम लोग चाहते हैं, लेट्स से अगर हम लोग आपका हाई रिस्क की प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, so there is like we need to make some capital charge against those particular uncertainties, ठीक है? या कोई भी ऐसे जो expected losses हैं या others, ठीक है? तो अगर हम लोग ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करें टू अचीव हायर रिटर्न्स, सो वी हैव टू मेक अ कैपिटल चार्ज अगेंस्ट दैट रिस्क वेट एसेट, सो दैट इज नोन एज कैपिटल. तो अगर रिस्क ज्यादा होगा, रिटर्न ज्यादा होगा, तो कैपिटल चार्ज विल ऑल्सो एट हायर साइड. सिंपल सा मीनिंग अगर हम बात करें. दूसरी तरफ अगर रिस्क कम होगा तो रिटर्न भी कम होगा और कैपिटल चार्ज भी क्या होगा, कम होगा. एज सिंपल एज दैट, दैट्स इट, राइट? सो हायर द रिस्क, higher the return, higher the capital, and vice versa. Higher the risk, higher the return, higher the capital, right? Bank maintain capital funds as a percentage of risk weight assets, ठीक है? जिसको हम लोग आपका जैसे हम लोग कहते हैं ना CAR या CRAR जो मेंटेन करते हैं, so that is linked with your risk weight assets, right? Bank creating low or risk asset can maintain low capital. Bank exposing to a high risk asset have to maintain high capital, ठीक है? So this is all about your risk and return payoffs. तो जिस तरीके से आपका जैसे ये पे ऑफ है, ठीक है? इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन दीज पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सो यू हैव लोअर रिस्क and return will be also lower side, and your capital charge against that particular one will be at again lower side, because the risk weight asset are at lesser numbers, right? So if you are investing in these kind of products, so where we have higher return, ठीक है? अब रिटर्न ज्यादा है तो वहां पर रिस्क भी ज्यादा है, तो रिस्क ज्यादा है तो आपका जो कैपिटल चार्ज होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा. एज सिंपल एज दैट. तो फर्स्ट एस्पेक्ट आपका what is the risk and the relation between risk, return and capital charge. Capital का मतलब यहाँ पे है amount which bank need to maintain for any kind of losses, contingency, provisions and others, ठीक है? So वो उस capital की हम लोग यहाँ पे बात करें. So that is generally maintained against the risk weight assets, right? So अब अगर हम लोग बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट का, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट शुरू होते हैं. आज आपको पूरा फ्रेमवर्क समझ में आएगा, ठीक है? फ्रेमवर्क को समझेंगे, ये चीजें आपको इस मॉड्यूल के एंड तक आपका हेल्प करेंगे, ठीक है? सो रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क विच कंसिस्ट दीज पर्टिकुलर पॉइंटर्स, ठीक है? तो अगर हम लोग जैसे रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की बात करते हैं, सो इट इंक्लूड जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, राइट? सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट आपका जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है? एनी like everything which is like related to risk management which is part of board approval policy. तो ये जैसे कोई भी credit risk management के ऊपर कोई guidelines है, so they are part of board approval policy. Eventually board will responsible for any losses made by that particular bank, so that's why they are generally part of board approval policy, ठीक है? देन इनके नीचे आपको मिलेगा जैसे एल्को, एसेट लाइबिलिटी कमेटी है. देन वी हैव रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, जिसके नीचे आपको बहुत सारे जैसे क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, देन वी हैव मार्केट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी एंड लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है? जिनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है? सो दीज एंड इनके नीचे यू विल सी सब ग्रुप्स एंड टास्क फोर्सेस, ठीक है? So, response to these consideration uncertainties basically call for risk management framework in an organization that has a well articulated process covering the following areas, which is first one is organization for risk management, so that include this particular portion, right? दूसरा आपका risk identification. अब फिर पूरा ये प्रोसेस, दिस इज ऑल्सो नोन एज रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, विच इंक्लूड 5 मेजर स्टेप. पहला रिस्क आइडेंटिफिकेशन, व्हाट इज प्रॉब्लम, ठीक है? तो पहले बीमारी का पता लगाना पड़ेगा तभी इलाज करेंगे, सो दैट इज द पॉइंट, ठीक है? सो लाइक जैसे आपका अगर हम लोग पूरे ओवरऑल स्टडी को देखते हैं, सो देयर आर 4 टाइप ऑफ रिस्क. ऑपरेशनल रिस्क, आपका लिक्विडिटी रिस्क, क्रेडिट रिस्क एंड मार्केट रिस्क. क्रेडिट रिस्क जो ओवरऑल आपका सबसे ज्यादा वेटेज रखता है बैंक के बुक्स के अंदर, ठीक है? देन आफ्टर आइडेंटिफाइंग दैट पर्टिकुलर रिस्क, ठीक है? सो अब हमने क्या बनाया, सब 4 टाइप के रिस्क हैं, उनके लिए 4 अलग अलग कमिटीज, एंड दे आर जनरली
bound to report risk management committee, and risk management committee is headed by CRO, चीफ रिस्क ऑफिसर जिसको हम लोग बोलते हैं. एक परमानेंट प्रोफाइल आपका 2017 ऑनवर्ड्स जो आरबीआई ने बनाया, जो डायरेक्टली रिपोर्ट करेगा किसको, बैंक के चेयरमैन को. ठीक है, तो इस तरीके से ये फ्रेमवर्क आपका डिजाइन किया गया. सो रिस्क आइडेंटिफिकेशन पहला, what are the problems or uncertainties we are going to face in the near future. Then quantifying that particular risk, कि ये जो प्रॉब्लम है इसका कितना नेगेटिव या एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा. ठीक है, देन आपका रिस्क प्राइसिंग, टू मिटिगेट दिस वी विल प्लान समथिंग लाइक hedging, derivatives or something else like provisions, or even there are some statutory requirement like CRR, SLR. तो वो कहीं ना कहीं बैंक के ऊपर बर्डन आएगा. सो दैट अमाउंट कि जो लॉसेस हम लोग फेस करने वाले हैं या सिस्टम फेस कर सकता है, तो उसके लिए कुछ, एक तो आपका प्रूडेंशियल गाइडलाइंस है आरबीआई की या रेगुलेटर की आपका, कि आपको 4% CRR मेंटेन करना होगा या 4.5% SLR, 18% आपका, ऐसे ये जो रिजर्व सिस्टम. इसके अलावा बैंक ऑल्सो मेक प्रोविजंस, वो सारे, या कोई और आपका किसी हेज कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग एंटर हो रहे, सो दैट इज द प्राइसिंग. ठीक है, then monitoring and control, we are monitoring that particular system with the help of MIS system. And we are having a proper cross check with the control system. And finally mitigation is a situation when that uncertainty become reality, तो वहां पे हम लोग इसको यूज करेंगे. ठीक है, सो वी विल गो थ्रू दिस एंटायर प्रोसेस वन बाय वन. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप कोई भी रिस्क पढ़ोगे हर जगह आपको ये प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा. तो पहले अच्छे से समझ लेते हैं, आसानी होगी बाद में. ठीक है, so organization for risk management, if you talk about this particular one, it usually include board of directors, ठीक है, BODs. Then we have risk management committee. Then we have a committee of senior level executives, which include asset liability committee, ELCO, credit risk management committee. Then we have operational risk management committee, and even we have liquidity as well as your आपका मार्केट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी. ठीक है, सो इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट अंडर दीज पर्टिकुलर कमिटीज वी हैव रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप्स एंड डिपार्टमेंट्स. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका ये रहेगा. जैसे यहाँ पे क्लियरली लिखा है, the board of directors has the overall responsibility for management risk, and any losses faced by the bank, they'll the BODs will be responsible for that one. ठीक है, the board articulate risk management policies, procedures, aggregate risk limit, review mechanism, and reporting and auditing system. Okay, board should decide the risk management policy of bank and set limit of various risk. अब यहाँ पे एक चीज आप थोड़ा सा इस तरीके से भी समझिएगा. ठीक है, देखो ये कुछ इस तरीके से भी काम करेगा. जैसे 4 आपके हमारे पास रिस्क के लेबल्स हैं. ठीक है, तो उसमें उनके अंदर से रिस्क मैनेजमेंट कमेटी जो ओवरऑल आपका बैंक लेवल पे रिस्क उसने सेग्रीगेशन किया, उसको असिस्ट करने के लिए 4 अलग अलग एरियाज. देन दे विल टेक केयर अबाउट देयर ओन एरियाज. ठीक है, जैसे ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट कमेटी वो अपना एरिया. ठीक है, they will come up with suggestion in other, they'll pass on to risk management committee, they'll pass on to board of directors, then they'll approve, then it will get implemented in the system. ठीक है, so organization, तो जिसमें आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अभी हमने बात किया, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, आपका सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव कमेटी, सपोर्ट ग्रुप, डिपार्टमेंट इन एल्को एज वेल. तो जिसमें एक एक करके इनको देखते हैं. ठीक है, पहला रिस्क मैनेजमेंट कमेटी इज अ बोर्ड लेवल सब कमेटी. द responsibility of risk management committee with regard to risk management aspect, which include setting guidelines for risk management and reporting, exposure that risk management process conform to the policy, setting up prudential limit and their periodical review, ensure robustness of risk management models, ensure proper monitoring of the process. ठीक है, अब तो यहाँ से आप समझो. ठीक है, तो देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनके नीचे है आपका रिस्क मैनेजमेंट कमेटी. रिस्क मैनेजमेंट कमेटी इसने अपने काम को आसान करने के लिए क्या किया हुआ है. ठीक है, सो उसने 4 कमिटीज बनाई. जैसे कौन कौन सा, आपका जो 4 टाइप ऑफ रिस्क है. ठीक है, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, देन वी हैव आपका लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, देन वी हैव मार्केट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, एंड देन वी हैव ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट कमेटी. इन सब के अलग अलग हेड होंगे. ठीक है, एंड अब जो बैंक का ओवरऑल रिस्क है दैट इज फर्दर डिवाइडेड अमंग 4 पार्ट. ठीक है, ये 4 अलग अलग पार्ट होंगे जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज आपका क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के, क्योंकि सबसे ज्यादा लॉसेस यहाँ पे आपका होता है. ठीक है,
then they'll take care about their own areas. To support them, we have सब ग्रुप्स. यहाँ पे आपके क्या रहेंगे, आपके इनके पास ग्रुप रहेंगे या टास्क फोर्सेस जिनको हम लोग बोलते हैं आपका, ठीक है. सो टास्क फोर्स आपके रहेंगे या फिर आपका अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स जो इनको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे आपका इस एंटायर जर्नी के अंदर, ठीक है. सो इसके अलावा हमारे पास एल्को है आपका, ठीक है, एसेट लाइबिलिटी कमेटी. बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका आपका, ठीक है, ट्रेजरी में या फिर लिक्विडिटी मैनेजमेंट में आपका, ठीक है. So ELCO, Asset Liability Committee, oversee the liquidity risk of the bank, monitor and tries to protect, improve NIM, net interest margin. And how we calculate net interest margin? It is NII, net interest income divided by average asset of the firm. ठीक है, तो ये हम सब पढ़ेंगे बाद में, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है. Recommend BPLR, benchmark prime lending rate, base rate, MCLR, RLLR of the bank to the board. Mid office group, again monitoring treasury operation on real time basis, ठीक है. इसके अलावा क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी आपका, ensuring robustness of credit risk in bank including credit risk process, model etc. Working out yearly rating wise distribution chart, yearly rating wise migration chart, yearly probability of default for individual rating as well as average probability of default, conducting portfolio analysis for retail loan assets आपका, ठीक है. तो ये इन दोनों का काम. इसके अलावा Operational Risk Management Committee, ensuring the robustness of operational risk management, analysis of fraud in the bank, and come out with the risk mitigating measures of the non-recurrence of such nature. Clear any new product process put by the business unit आपका, ठीक है. इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप्स जो इनको कहीं ना कहीं असिस्ट करेंगे, जैसे रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट विल हेडेड बाय CRO, चीफ रिस्क ऑफिसर, in the cadre of general manager in public sector banks. He will have competent of qualified skill staff to manage the following department, जैसे asset liability group, mid office group to monitor treasury operation, market risk, credit risk group to monitor credit risk, and we have operational risk group to monitor operational and residual risk आपका, ठीक है. तो ये सारे जो आपके ओवरऑल जो आपका वर्क फ्लो जो देखने के लिए मिलेगा. नाउ मैनेजमेंट प्रोसेस, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस. तो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस आपका 5 स्टेप प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है. फर्स्ट वन इज रिस्क आइडेंटिफिकेशन की what kind of risk our bank is going to face in the near future. So this is the very first step कि जहाँ पे हम लोग जो expected losses हैं या फिर आपका जो uncertainties हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है. वो क्रेडिट से रिलेटेड हो या मार्केट से हो या लिक्विडिटी हो या फिर आपका ऑपरेशनल हो, ठीक है. फर्स्ट थिंग. दूसरा मेजरमेंट, इट इज बेसिकली क्वांटिफाइंग दीज पर्टिकुलर लॉसेस कि ये जो आपका जो अनसर्टेनिटी है इसकी वजह से बैंक को कितना आपका लॉस हो सकता है, ठीक है. सो कितना एडवर्स इंपैक्ट ये हमारे बैंक के प्रॉफिटेबिलिटी पे डालेगा. देन प्राइसिंग आपका, प्राइसिंग इज समथिंग कि जैसे to mitigate that particular risk we will follow some strategies or some procedures, so that will include some cost. जैसे regulatory level पे बैंक they need to maintain CRR. अब देखो क्या हो रहा है कि जैसे आपका कोई कमर्शियल बैंक है, so they have to maintain CRR and current CRR is 4.50%, right? If I'm not correct, अगर थोड़ा गड़बड़ होगा तो बता देना, ठीक है. आई गेस इट इज 4.5 ओनली, ठीक है. सो अब क्या हो रहा है, सो एक बैंक आपका जिसका NDTL या DTL जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उसका जितना भी let's say they have borrowed 100 rupees from the public, so now out of this 100 rupees they have to deposit 4.50 rupees with RBI, and RBI does not pay any interest on this particular CRR, okay. तो इस पे कोई इंटरेस्ट आपका नहीं मिल रहा है, and this is liability on your bank. हमने ये पैसा क्या करा था, कहीं से आपका बोरो किया हुआ था, ठीक है. तो एक तो हमें इस पे कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है. अगर ये नहीं होता, सपोज दैट, तो अगर ये नहीं होता CRR सिस्टम, तो हम क्या करते, इस पैसे को कस्टमर को लैंड करते और आपका हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट अचीव करते जहां पे हमें अपनी पॉकेट से इंटरेस्ट देना पड़ा है. सो दिस इज योर रिस्क प्राइसिंग. ये जरूरी है क्योंकि अगर कल के डेट में कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है तो दिस विल सेव यू, ठीक है. इस तरीके से आपका अब खाली यहीं पे कहानी नहीं है, जैसे CRAR या कैपिटल कन्वर्जन बफर्स या अदर्स जितने भी रिक्वायरमेंट्स या इवन
To protect our existing portfolios, bank generally make some like hedging position. तो वो आपका कहीं ना कहीं आपका जैसे हम लेट्स से जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप आपके हैं उसमें एंटर करें, सो वी आर पेइंग लाइक एज अ प्रोटेक्शन बायर वी आर पेइंग सम प्रीमियम टू द प्रोटेक्शन सेलर, सो दैट इज योर प्राइसिंग, ठीक है। तीसरा आपका मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, तो जो प्लान प्रोसेस है वो एज इट इज काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उस पूरा जर्नी का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन अगेन, ठीक है। फाइनली मिटिगेशन, आपका मिटिगेशन इज बेसिकली व्हेन दैट अनसर्टेनिटी बिकम रियलिटी, सो वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट आवर प्लान, ठीक है। तो वो आपका काम करेगा या नहीं करेगा, या उस दौरान आपके जो भी चेंजेस हैं उनको देखना, ठीक है। सो वन बाय वन आई होप इतना समझ में आ गया होगा, तो अब आप थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को समझेंगे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। सो नियरली ऑल ट्रांजेक्शन अंडरटेकिंग would have one or more of the major risk: liquidity, interest risk, market default, operational, with the manifestation in different dimensions, right? So banking business is a business of risk taking, simple word में अगर हम इसको बोलें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो मिटिगेशन आपका है या जो प्लान है वो कैसा होना चाहिए, इट शुड बी साइमल्टेनियस, ठीक है। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते पहले रिस्क मैनेजमेंट कर लें फिर आपका एक्टिविटीज करेंगे, या पहले एक्टिविटीज कर लेते हैं फिर आपका रिस्क मैनेजमेंट करेंगे। सो यू हैव टू रन बोथ साइमल्टेनियसली, तो उसके लिए आपका इस प्रोसेस का जरूरत पड़ेगा। ऑल्दो ऑल दीज रिस्क contracted at a transaction level, certain risks such as interest rate risk are managed at aggregate or portfolio level. Risk such as credit risk, operational risk, market risk arising from individual transaction are taken cognizance of at the transaction level as well as portfolio level. So most of time you will see आपका कुछ जो मैनेजमेंट है वो कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका रिस्क आइडेंटिफिकेशन, देन वी हैव risk measurement. Sorry, please do correct this one. It is measurement. Second one is risk measurement. Measurement is basically to quantify that particular risk, right? So risk measurement relies on quantitative measures of the risk. The risk measure seek to capture वेरिएशन इन अर्निंग्स, मार्केट वैल्यूज, लॉस ड्यूज टू डिफॉल्ट एंड अदर्स, ठीक है। तो जो आपका प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हुए हैं उनसे बैंक को कितना नुकसान हो सकता है, सो टू क्वांटिफाई दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, फॉर दैट वन वी हैव, it can be based on sensitivity, it can be based on volatility, or it can be based on downside potentials, ठीक है। sensitivity which will reflect upside and downside potential, volatility आपका again upside and downside, आपका डाउनसाइड पोटेंशियल विल ओनली रिप्रेजेंट डाउनसाइड पोटेंशियल्स अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर एसेट और पोर्टफोलियो, ठीक है। तो सबसे सटीक आपका जो मेजरमेंट माना जाता है वो डाउनसाइड पोटेंशियल से, ठीक है। जैसे सेंसिटिविटी क्या होता है आपका कि हाउ सेंसिटिव दैट पर्टिकुलर एसेट विद रिगार्ड टू सम इंडाइसेस, अगर वो इंडेक्स कैसे मूव कर रहा है तो आपका एसेट कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। वॉलेटिलिटी आपका अगेन सेम उस सीक्वेंस में आपका रहेगा, ठीक है। जो अपसाइड भी हो सकता है डाउनसाइड भी, बट ये आपका बाय यूजिंग सेंसिटिविटी एंड वॉलेटिलिटी, इनके जो डाउनसाइड मैचेस हैं उनको लेते हुए डाउनसाइड पोटेंशियल्स का कैलकुलेशन आपका किया जाता है। सो सेंसिटिविटी कैप्चर डेविएशन ऑफ अ टारगेट वेरिएबल ड्यू टू यूनिट मूवमेंट ऑफ अ सिंगल मार्केट पैरामीटर्स, जैसे भी हमने बात की, जैसे सेंसेक्स को आप ले सकते हैं उसी तरीके से, ठीक है। ओनली दोज मार्केट पैरामीटर्स विच ड्राइव द वैल्यू ऑफ टारगेट वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू दी related for this particular purpose. In the outcome of sensitivity can be positive or negative, ठीक है। Volatility, it is possible to combine sensitivity to target variables with the instability of the underlying parameters. The volatility characterizes the stability or instability of any random variables. मतलब यहाँ पे जैसे 10 वेरिएबल्स हैं उनमें से एक वेरिएबल्स को आपने टेस्ट किया फिर दूसरे को किया, इस तरीके से नहीं। इट इज अ कॉमन स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ डिस्पर्जन अराउंड द एवरेज ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल्स सच एज अर्निंग, या फिर आपका मार्क टू मार्केट वैल्यूज इन केस ऑफ डेरिवेटिव, मार्केट वैल्यू इन केस ऑफ बॉन्ड्स इन अदर्स, लॉस ड्यूज टू डिफॉल्ट्स इन केस ऑफ क्रेडिट पोर्टफोलियोज इन अदर्स, ठीक है। डाउनसाइड पोटेंशियल्स, ये बहुत बार पूछा जाता है और बहुत यूज भी होगा आगे, ठीक है। So risk materialize only when earning deviate adversely. Volatility capture both upside and downside deviation. Downside potential only capture possible losses, ignoring the profit potential. It is adverse deviation of the target variables, right?
रिस्क प्राइसिंग आपका तीसरा जो टूल था, ठीक है। तो पहला हमने पढ़ा कौन सा, फर्स्ट वन इज योर आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड वन इज क्वांटिफाइंग द रिस्क, जहाँ पे हमारे पास तीन टूल हैं और ऐसे बहुत सारे टूल्स जहाँ पे हम उनको इस्तेमाल करेंगे। तीसरा आपका है रिस्क प्राइसिंग, ठीक है। So risk in banking transaction impact bank in two ways. First, bank have to maintain a necessary capital like CRR, SLR and others, which is at least as per the regulatory requirements. ठीक है? The capital required is not without cost. The cost of capital arise from the need to pay investors in bank equity in the form of dividends and for internal generation of capital necessary for business growth. Each banking transaction should be able to generate necessary surplus to meet this particular cost. The pricing of transaction must take into account. ठीक है, तो अब आप जब जैसे कि अगर हम रिस्क प्राइसिंग में जा रहे हैं तो अल्टरनेट्स क्या हैं और बेस्ट क्या है, क्योंकि हमारा जो एनआईआई है इट शुड बी ग्रेटर, मतलब इट शुड बी इन पॉजिटिव, तभी आपका बैंक क्या कर पाएगा, जो सॉल्वेंसी है उसको मेंटेन कर पाएगा, राइट। सो risk pricing before you should take into account the following. पहला, cost of deployable funds, जो हम लोग आपका लोन दे रहे हैं तो बोरोविंग कॉस्ट क्या रहनी चाहिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपका, लॉस प्रोबेबिलिटीज क्या है, कैपिटल चार्ज क्या रहेगा उनके लिए, एंड प्रॉफिट मार्जिन और रिटर्न ऑन नेटवर्थ। सो दीज आर सम पैरामीटर्स विच वी नीड टू कंसीडर ड्यूरिंग द रिस्क प्राइसिंग, ठीक है। अगला चौथा आपका मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल. So the key driver in managing a business is seeking enhance the RAROC. आज की डेट में, पहले जैसे आपका होता था ROA, ठीक है, अभी भी यूज होता है, ऐसा नहीं, रिटर्न ऑन एसेट्स या ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है, ये हम लोग जो बैंक लेवल पे आपको आपके बैंक का आउटकम बताते हैं, ठीक है, एज अ होल। बट एक नया टूल आपका डेवलप किया गया विच इज नोन एज रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल, विच विल हेल्प यू बेसिकली जो बिजनेस एक्टिविटीज लेवल पे, ठीक है, जैसे वी हैव एज पर BCBS क्लासिफिकेशन वी हैव 8 बिजनेस लाइन, ठीक है, जैसे रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग, पेमेंट, सेटलमेंट, दिस, ठीक है, कल पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है। अब जैसे ये आपका रिटेल बैंकिंग है, इसके अंदर भी आपका वी हैव नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, तो हर एक प्रोडक्ट लेवल पे आपका आउटकम क्या है, कि अगर आप उस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, सो हाउ मच रिस्क कैपिटल इज इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर वन, एंड उससे रिटर्न क्या है, ये तक का आपको आउटकम देगा कौन, RAROC। इसलिए ये बहुत ज्यादा फेमस आपका, इसीलिए जब आप अपना मॉड्यूल डी पढ़ेंगे बैलेंस शीट मैनेजमेंट, तो उसमें एक कंप्लीट यूनिट आपका यूनिट नंबर 35 जो पूरा इसी को डेडिकेटेड है, ठीक है। सो देयरफॉर द अप्रोच टू रिस्क मैनेजमेंट कैन नॉट बी in isolation or in standalone mode. The approach to risk management centers on facilitating implementation of risk and business policies simultaneously in a constant manner. ठीक है, ये बात अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बोली थी। So you cannot wait कि पहले एक्टिविटीज कर लेते फिर रिस्क मैनेजमेंट करेंगे और वाइस वर्सा. You have to run the plan in a simultaneous way, right? So modern best practices consist of setting risk limit based on economic measure of risk, ensuring the best risk adjusted return, keeping in view the capital that has been invested in the business. It is a question of taking a balanced view on risk and return, and that too within the constraint of the available capital. तो हमें एक बैलेंस आपका लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आई कैन गिव यू एन एग्जांपल, जैसे हमने 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया एंड वी गेट 10 करोड़ रुपीस, हमने आपका 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया एंड वी गेट सपोज दैट 30 करोड़, सॉरी आपका सपोज दैट 7 करोड़ रुपीस, ठीक है। सो दिस इज गुड फॉर अस, ये हमारे लिए अच्छा है रादर देन दिस, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रिस्क कैपिटल है दैट इज एट हायर साइड, ठीक है, रिस्क वेट एसेट क्या बहुत ज्यादा है कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, भले ही प्रॉफिट कम है बट इट इज सस्टेनेबल, तो वो चीजें आइडेंटिफाई करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। In order to achieve this above objectives, so we have organizational structure, comprehensive risk measurement approach, risk management policies adopted at corporate level, guidelines and other parameters used to govern the risk, आपका जो इनके requirement हो जाएंगे for the monitoring as well as control. Final one is risk mitigation. So since a risk arises from uncertainties associated with the risk element, risk reduction is achieved by adopting strategies
that eliminate or reduce the uncertainties associated with the risk element. So this is generally known as risk mitigation. Simple, sir. Then when that uncertainty become reality, so we have to execute whatever we have planned in the past. Okay? So response to these consideration called risk management. So where we have this particular one. तो जहाँ पे पूरा आपका जो अभी तक का काम था, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आपके प्रोसेस प्लान प्रोसीजर्स, उनको हमें आपका मार्केट में क्या करना होगा, फ्लो करना होगा. ठीक है. One more thing is part of this particular unit that is known as EWRM, the Enterprise Wide Risk Management. हर साल ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको इसके ऊपर मिलता है एग्जामिनेशन में. ठीक है. इट इज ऑल्सो नोन एज ERM या EWRM, एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट. देखो क्या होता है ना कि it is an internal process for the bank. It can be internal or external, but it is bank or organizations or institution own methods to tackle any kind of risk. ठीक है. जैसे there are certain regulatory requirements including Basel guidelines. Apart from that, there is the model that is called EWRM model, which has 8 components, and through these 8 components you will be able to achieve these 4 objective. Strategic, आपका operations, reporting and compliances about the risk management. ठीक है. So risk management, strategic, operations, reporting, compliances can be achieved by using all these 8 parameters or components, जैसे internal environment, objective, event identification, risk assessment, risk response, control activities, information and communication and monitoring. EWRM मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इट इज अ काइंड ऑफ कंटिन्यूअस मॉडल. जैसे जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशनल चेंज आएंगे, इट विल ऑल्सो चेंज, वो सारी चीजें, और बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. ठीक है. सो दीज आर दी 8 components which we are going to discuss. ठीक है. So evaluation of existing risk management system involve a review of the internal environment with a review to assess the risk philosophy and risk culture, a review of the process of setting objectives, assessment of existing mechanism of identifying risk factors that can affect achievement of the desired objectives, evolution of the existing process of assessing risk, assessment of the process of responding to identified risk, evaluation of the adequacy of the existing control process, assessment of the adequacy of existing MIS system, review of the process of monitoring risk. आपका ठीक है. तो one by one सबको पढ़ेंगे. So EWRM can be defined as a continuous and structured process of listing the objective of the organization. It helps in identifying all internal and external risk factors that could impact the achievement of objectives and organization's business and financial targets, prioritizing the risk factors, exploring an alternative for risk, mitigating the risk and controlling and monitoring such risk. तो जहाँ पे मतलब these are the key objectives which we will achieve through this particular one. तो basically 4 objectives जो इन 2 लाइनों में लिखेंगे. EWRM encompass the entire gamut of the organization's operation and is not limited to a single event or circumstances impacting to the organization functioning. It is a dynamic process involving people at all level, covering every aspect of organization's resources and operation, and take a holistic picture of the entire organization for the purpose of रिस्क मैनेजमेंट अदर देन रेगुलेटरी एंड बेसल गाइडलाइंस. ठीक है. ये बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा. तो 8 चीजें आपकी थी. पहला आपका रिव्यू ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट विद अ व्यू ऑफ असेसिंग द रिस्क फिलोसफी एंड कल्चर, जो भी हमने पढ़ा था. सेम आपका 2 रिव्यू ऑफ द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव, 3 असेसमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म, 4th one is evaluation of the existing process, 5th one is assessment of the process of responding to identified risk, 6th one is evaluation of the adequacy of the existing control process, 7th one is assessment of adequacy of existing MIS system, and 8th one is review of process of monitoring risk. आपका ठीक है. तो ये जो इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट के लिए ये आपका एक टूल जो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा है और मतलब हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशंस को in the betterment of risk management. Okay? So bank have identified and started adopting EWRS,
enterprise-wide risk management framework released by COSO, Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission, as a framework to drive their initiative in risk management beyond Basel and regulatory compliances. देखो यहाँ पे जो बात मैं आपको बोल रहा था वो यहाँ पे clearly mention भी किया गया, ठीक है. The COSO ERM framework has all the components that could help the bank to stand a chance to drive business value while meeting compliance requirement as well, ठीक है. So as per COSO, 8 key components, which are internal environment, objective setting, risk assessment, risk response, control activities, information and communication, and monitoring. With the help of these particular 8 components, we are generally trying to achieve 4 key objectives, which are strategic, operational, reporting and compliances, ठीक है. तो प्लीज ये ध्यान रखें, कई बार ये पूछे गए हैं आपका, ठीक है, कौन सा आपका कंपोनेंट है या नहीं है. कई बार इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वो आपसे पूछ लेता है, ठीक है. तो और जो पूछेगा बहुत आसान तरीके से पूछेगा, ठीक है. आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा, बट यू हैव टू. और ये कौन कौन से 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम इससे अचीव करना चाहते हैं, सो दैट इज अगेन मस्ट, ठीक है. तो ये बहुत बार एग्जामिनेशन के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा. अगर आप अपनी बुक ओपन करेंगे बीएफएम की, तो वहां पे कुछ इस तरीके से आपको ये चार्ट देखने के लिए मिलेगा. दिस इज इट गाइस, ठीक है. सो enterprise-wide risk management help identifying and selecting along alternative risk responses, risk avoidance, reduction, transfer, and acceptance. It helps to ensure effective reporting and compliances with laws and regulation and avoid damage to entities, reputation, and associated consequences. As the risks keep constantly changing and evolving in the global economy, EWRM is a never ending journey. ठीक है. तो ये समरी आपके लिए जो लास्ट लाइन में, ठीक है, ठीक है. सो दिस इज इट. तो ये पहला आपका यूनिट, एंड बिलीव मी गाइज, अगर आप अपने बुक को उठाएंगे ना उसका और ये कंटेंट को मैच करेंगे, यू विल गेट 100% कवरेज फॉर दिस वन, ठीक है. आई नॉट टेक एनी चांस कि वो आपको एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम करे, ठीक है. तो मैं चाहता हूं कि आपको बेस्ट वे में आप एक बार पढ़े, बहुत बेहतर ढंग से पढ़ें, और आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए आप फंडामेंटली बहुत अच्छे ढंग से रेडी हो जाए. लेटर ऑन आई विल कम अप विद सेट ऑफ क्वेश्चंस, यूनिट वाइज क्वेश्चन इन केस स्टडीज, जो आपको यहाँ पे आगे जो प्रॉब्लम्स हैं या उन चीज़ों को याद करने में आपका कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, ठीक है. तो कैसा लगा सेशन जरूर कॉमेंट्स में लिख के बताएं, और अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और अपने जो साथी बैंकर्स हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है. एंड इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस, सो फील फ्री टू आस्क. आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप आपका ज्वाइन कर सकते हैं, या किसी भी अदर मीडियम से आप कनेक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड गाइस. आई विल सी यू टुमारो विद द यूनिट नंबर, लाइक द नेक्स्ट यूनिट विच इज रिस्क एंड बैंकिंग बिजनेस. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन फंडामेंटली. सो उसको हम लोग समझेंगे और उससे रिलेटेड एरियाज को आपका डिस्कस करेंगे, ठीक है. सो दिस इज इट. बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे. थैंक यू.